This lecture, first of all, we will discuss the energy losses in a ferromagnetic core. So in this class, our main objective is to calculate the value of energy losses in a ferromagnetic core. So as we have already done in the lab, there are two types of losses in the core. Let's suppose this is the ferromagnetic core. So we have already done in the lab, there are two types of losses. There are two types of the losses of the core. The first one is eddy current losses, and the second type of the losses is hysteresis losses. Hysteresis losses. So in this class, first of all, we will discuss the hysteresis losses. What is the meaning of the hysteresis? How can we find the value of the hysteresis losses? And how can we reduce the hysteresis losses in the core? After this, we will discuss the eddy current losses. The basic phenomena of the eddy current losses. How can we calculate the value of the eddy current losses? How can we minimize the eddy current losses in the core? So in this class, we will discuss these two type of losses in detail. So I hope कि सबको आपको क्लियर आवाज आ रही होगी और स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी सबके साथ. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, स्टूडेंट, अपना माइक आप लोगों ने ऑफ रखना है. जब आपसे कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी पॉइंट के अंदर तो माइक ऑन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अदरवाइज आप लोगों ने अपना माइक ऑफ रखना है इसके अंदर. ठीक है. Okay, first of all, we will discuss what is the core. So as we have already discussed, in the core, we use the specific material that is steel or iron. In case of by applying the electric current, when we apply it, let's suppose this is the total number of turns. So when we will apply the current, then the magnetic field will produce. जब हम करंट अप्लाई करेंगे तो करंट की वजह से क्या होगा, कोर के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. ये इस पॉइंट को हमने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया था, ये कि फ्लक्स प्रोड्यूस कैसे होता है. ये तो इसका मीनिंग और इसको डिटेल के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था. ये नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द फ्लक्स. Let's suppose this is the magnetomotive force. So as we know, magnetomotive force is basically equal to N into I. And let's suppose this is the flux. So as we have already discussed in the last class, when the value of the magnetomotive force will increase, then the value of the flux will increase as well. So in case of saturation, the change in flux will be minimum. At the start, the relationship between flux and the magnetomotive force is directly proportional when the core is unsaturated. After this, the second stage, when the core is in the knee curve of the core, and after this, the value of the flux or the change in flux is minimum or approximately equal to 0. So in case of saturation, when we will increase the value of the current, then the change in flux will be minimum or approximately equal to 0. So this point we have already discussed in detail in the last lecture. तो ये आई होप कि ये पॉइंट सब स्टूडेंट को क्लियर होगा कि ये हमने कर्व कैसे ड्रॉ की थी, इस कर्व के रीजन कौन कौन से ये. तो उस रीजन में हमने रीजन नंबर 1, 2, 3 को हमने नाम क्या दिया था और इस रीजन 4 को हम किस रीजन में ऑपरेट करते हैं. तो आई होप कि ये सब स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर होगा इसके अंदर. Yes, sir. Okay. Okay, now the question is when we will apply the AC current. अब हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम इस कोर में AC करंट अप्लाई करें तो उस केस में इस फ्लक्स का बिहेवियर क्या होगा. ये हमारे पास क्योंकि फ्लक्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोर है, कोर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फ्लक्स में क्या होगा हमारे पास, इसकी वजह से क्या होगा, लॉसेज होंगे. और हमारे पास लॉसेज कौन कौन से होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हेन वी विल अप्लाई द AC करंट. क्योंकि हमने डिस्कस किया था करंट हमारे पास टू टाइप्स हो सकती है, DC करंट हो सकता है या AC करंट हो सकता है. ये हमारे पास टू टाइप्स हैं करंट की बेसिकली. अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये, अगर लेट्स सपोज व्हेन वी विल अप्लाई द AC करंट. सो एज वी नो AC means alternating current. Let's suppose this is the time and this is the current. So in case of alternating current,
दिस विल बी द वेव फॉर्म। तो जब हम यहाँ पे कोर के क्रॉस, लेट्स सपोज दिस इज द कोर, दिस इज द करंट, तो जब हम यहाँ पे इसको एसी करंट अप्लाई करेंगे ये, तो उस केस में हमने फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स का बिहेवियर क्या होगा, या इस कोर के अंदर हमारे पास बिहेवियर क्या होगा, उस पैरामीटर में कैसे चेंज आएगा, उसको हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमें जो करंट अप्लाई करना है कोर के क्रॉस, द करंट विल बी एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट। अब हमने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करके यहाँ पे हमने क्या करना है बेसिकली कैलकुलेशन करनी है कि इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है। So now as you can see in this waveform, तो अगर आप इस वेवफॉर्म में देखें तो हमारे पास यहाँ पे करंट स्टार्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दिस द वैल्यू ऑफ द करंट डिक्रीजिंग। इसके बाद हम देखें तो करंट हमारे पास नेगेटिवली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद करंट द्वारा क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट है इस वेवफॉर्म के लिए। तो इट मीन्स ये करंट का बिहेवियर भी क्या होगा, ये भी बार बार चेंज होती है। करंट हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, एसी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब करंट चेंज हो रहा है इट मीन्स कि हमारे पास कोर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स विल बी चेंज एज वेल। तो फ्लक्स के अंदर भी क्या होगा, हमारे पास चेंज अक्सर होगा, क्योंकि जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, तो फ्लक्स भी क्या करेगा इसके अंदर, इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब हमने इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना है कि ये हमारे पास इसमें फ्लक्स का रिलेशन क्या होगा। So now as you can see in this AC waveform, there are 4 segments. This is the segment number 1, this is the segment number 2, this is the segment number 3, and this is the segment number 4. So in the segment number 1, as you can see in this waveform, the value of the current is increasing. अगर हम segment number 1 में देखें हमारे पास, तो करंट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। In case of segment number 1, current increase. आई होप कि ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि सेगमेंट नंबर 1 में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास करंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जब करंट इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं ये। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द करंट इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 1। सो इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 2, दिस इज द सेगमेंट नंबर 2। So now as you can see here, in case of segment number 2, so in segment number 2 the value of the current is decreasing. तो अगर हम देखें तो हमारे पास सेगमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, करंट हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, आई डिक्रीज। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम कोर की कैलकुलेशन करेंगे, कोर को हम सॉल्व करेंगे, इट मींस के स्टार्ट में हमने करंट क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर हम देखेंगे फ्लक्स के अंदर क्या चेंज आता है, इसको हम उसके बेस पे सी कर्व हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो नाउ इन केस ऑफ द सेगमेंट नंबर 3, द करंट इज डिक्रीजिंग इन द द करंट इज इंक्रीजिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम सेगमेंट नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 3, तो अगर हम सेगमेंट नंबर 3 में देखें हमारे पास the current increases in the opposite direction. तो आई होप कि ये पॉइंट भी सब स्टूडेंट को क्लियर होगा कि इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 3, ये हमारे पास क्या था, बेसिकली सेगमेंट नंबर 2, तो दिस इज द सेगमेंट नंबर 3। अगर आप देखें सेगमेंट नंबर 3 में यहाँ पे हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर ये, तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, बेसिकली इंक्रीज हो रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट 1 में भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन करंट की क्या है, डिफरेंट है। लेकिन सेगमेंट नंबर 3 के अंदर भी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ऑपोजिट एज कम्पेयर टू सेगमेंट नंबर 1। तो आई होप ये पॉइंट भी सब स्टूडेंट को क्लियर होगा कि सेगमेंट नंबर 3 के अंदर भी करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की ऑपोजिट है ये। तो ये पॉइंट भी सबको क्लियर होगा। So the last segment is segment number 4. So in segment number 4, the value of the current is decreasing. So in segment number 4, current is decreasing. The current decreases. So segment number 4 में करंट क्या हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास अब 4 डिफरेंट सेगमेंट आ गए कि जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर हम एसी अप्लाई करेंगे, करंट क्या हो सकता है, एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर
कि ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा जो करंट हम अप्लाई करते हैं वो एसी करंट अप्लाई करते हैं। Yes. तो जब हम यहाँ पे एसी करंट अप्लाई करें तो अगर हम देखें तो एसी करंट के अंदर हमारे पास करंट क्या हो रहा है, इसकी डिफरेंट सेगमेंट है। करंट स्टार्ट में इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। आफ्टर दिस द करंट इज इंक्रीजिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके बाद दोबारा करंट क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट वन साइकिल का बिहेवियर आ गया। ये इसके बाद यही साइकिल क्या होगा, बार बार रिपीट होगा बेसिकली। तो अब हमें ये पॉइंट क्लियर होगा कि जब हम कोर के अंदर जो ट्रांसफार्मर कोर है बेसिकली, यहाँ पे जब हम करंट अप्लाई करें, दैट दिस इज द एसी करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो जब हम अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे इट मीन्स कि हमारे पास फ्लक्स के अंदर क्या होगा, बेसिकली चेंज अकर होगा। ये तो वो चेंज हमने भी कैलकुलेट करना है, उसके एक वेवफॉर्म ड्रॉ करने के। जब हम एसी करंट अप्लाई करेंगे ये, तो फ्लक्स का बिहेवियर क्या होगा। ये आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि अब हमने बेसिकली इसमें डिस्कस क्या करना है। वन बाय वन सेगमेंट हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हर सेगमेंट के क्रॉस देखेंगे फ्लक्स का बिहेवियर क्या आ रहा है। उस बेस में हम कंक्लूड करेंगे कि इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस अक्कर कैसे होती है। उससे पहले आपको ये एसी की वेव फॉर्म के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर ये देयर आर 4 सेगमेंट्स इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। Yes. तो इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेगमेंट 1 में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेगमेंट नंबर 2 में करंट की बिहेवियर क्या होगा, सेगमेंट 3 एंड 4 के अंदर करंट का बिहेवियर क्या क्या होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं। Okay, student. So now in the first of all, we will solve the segment number 1. So in case of segment number 1, let's suppose the waveform of the segment number 1 is, let's suppose this is the graph, this is the magnetomotive force Ni and this is the flux phi. So magnetomotive force is basically equal to total number of turns times current. So in case of segment number 1, as you can see in this figure, in case of segment number 1, when in segment number 1 the value of the current is increasing. अगर हम सेगमेंट नंबर 1 में देखें तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो जब करंट इंक्रीज करेगा तो इट मीन्स कि हमारे पास करंट और फ्लक्स का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो जब करंट इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी। तो अगर हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें, सो इन सेगमेंट नंबर 1 दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ फ्लक्स। अगर हम देखें तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स भी क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। तो स्टार्ट के अंदर फ्लक्स ज्यादा इंक्रीज होगा, उसके बाद जैसे जैसे कोर्स सैचुरेशन पॉइंट में होगी, जब ये एरिया क्या होगा, फिलअप होगा, उसके अंदर स्पेस कम होगी, तो उसके बाद जो फ्लक्स के अंदर चेंज वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये सेगमेंट नंबर 1 का बिहेवियर सबको क्लियर होगा। इसके अंदर कोई इशू नहीं किसी को। ये No, sir. इसके अंदर जस्ट हमने क्या किया कि सेगमेंट 1 में क्योंकि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जब करंट इंक्रीज करेगा तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अगर लेट्स सपोज कोर यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया हमारे पास, लेट्स सपोज दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट। अगर हम फर्दर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर सैचुरेशन पॉइंट के बाद हम फर्दर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स के अंदर कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स उसके बाद हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स इंक्रीज करने से भी फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता। उसकी रीजन क्या होती है कि कोर क्या है हमारे पास, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। प्लीज अगर अपना माइक ऑफ करने, अगर किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ करने, अगर क्वेश्चन है तो उस वक्त माइक ऑन करें ताकि क्लियर आवाज जा सके। आई होप कि ये पॉइंट सब स्टूडेंट को क्लियर होगा। इसके अंदर अगर यहाँ पे कोई किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या आप डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ तक कर सकते हैं, अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। So in case of segment number 1, when the value of the current will increase, then the value of the flux will increase. तो जब हमारे पास ये सैचुरेशन पॉइंट होगा, ये तो सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या मैग्नेटोमोटिव फोर्स को फर्दर इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है कि कोर क्या है हमारे पास सैचुरेशन में जा चुकी है, इसके अंदर हमारे पास स्पेस क्या लेस है, मिनिमम है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। सो दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ फ्लक्स इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 1। तो आई होप कि ये बिहेवियर सब स्टूडेंट को क्लियर होगा कि सेगमेंट नंबर 1 के अंदर हमारे पास फ्लक्स का बिहेवियर क्या होगा। सो नाउ वी विल फाइंड द बिहेवियर ऑफ फ्लक्स इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 2। तो अब हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर हम जब सेगमेंट नंबर 2 के अंदर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही तो हमें देखना कि फ्लक्स के अंदर क्या चेंज आता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस विल बी द बिहेवियर ऑफ इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 1। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया, इसमें तो ये हमारे पास सेगमेंट नंबर 1 का
बिहेवियर आ गया इसके अंदर। तो दिस विल इज द बिहेवियर ऑफ इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 1. So now in case of segment number 2, अगर हम यहाँ पे देखें, let's suppose this is the AC waveform and this is the sinusoidal signal. So this is the segment number 1 and this is the segment number 2. So now we will find the behavior of flux in case of segment number 2. अब हम देखते हैं कि सेगमेंट नंबर 2 के अंदर हमारे पास जब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फ्लक्स में क्या चेंज आता है। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द सेगमेंट नंबर 1. अब आपको आई होप कि सबको क्लियर हो कि यहाँ पे सेगमेंट नंबर 2 के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब करंट डिक्रीज करेगा तो इट मीन्स कि हमारे पास करंट और फ्लक्स का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी ये, अगर हम इस वेवफॉर्म में देखिए सेगमेंट नंबर 2 के अंदर देखें हम, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इट मीन्स कि फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास करंट अगर इंक्रीज कर रहा है, स्टार्ट में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, सैचुरेशन पॉइंट के बाद इसके अंदर चेंज अप्रॉक्सीमेटली क्या हुआ था, 0 हो गया था। ये इसकी रीजन क्या थी, कोर क्या है हमारे पास, सैचुरेशन पॉइंट था। नाउ इन केस ऑफ सेगमेंट नंबर 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट विल डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विल डिक्रीज एज वेल। तो जैसे जैसे हम करंट को डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसमें हमारे पास बिहेवियर स्टार्ट में क्या था यहाँ पे ये, तो इन सेगमेंट नंबर 1 दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द फ्लक्स। अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ सेगमेंट नंबर 2 व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट विल डिक्रीज। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये कि हमारे पास अगर करंट यहाँ पे इस पॉइंट में हम देखेंगे तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, सेगमेंट नंबर 2 के अंदर इस पॉइंट में जाके करंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो जब करंट 0 हुआ तो इट मीन्स कि हमारे पास फ्लक्स भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर 0 होना चाहिए। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि हमारे पास यहाँ पे हिस्टैरिसीस अक्सर कैसे करता है, इसकी रीजन क्या होती है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आई होप कि सबको क्लियर होगा कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ इन सेगमेंट नंबर 2, अगर यहाँ पे देखें करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे देखें फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। जब करंट हम 0 करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स उस वक्त 0 नहीं एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, जो मेन पॉइंट है हमारे पास, कि जैसे जैसे हम करंट को 0 करते हैं हमारे पास यहाँ पे हम क्या देखते हैं, करंट जब 0 होता है उस केस में हम यहाँ पे देखते हैं फ्लक्स की वैल्यू 0 एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी रीजन क्या होती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे हम करंट को 0 कर रहे हैं तो फ्लक्स को भी क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये फ्लक्स यहाँ पे 0 नहीं होता, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, कुछ परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कोर के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रीजन इसकी डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास फ्लक्स जब करंट 0 हम करते हैं उस केस में कोर के अंदर जो फ्लक्स है हमारे पास या मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर, वो 0 क्यों नहीं होती, उसकी रीजन क्या होती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट में आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे हम फ्लक्स करंट डिक्रीज करते हैं तो फ्लक्स भी डिक्रीज होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब करंट 0 होता है तो फ्लक्स यहाँ पे 0 नहीं होता है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर होगा। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। हाँ सर, क्लियर। ठीक है, इसके अंदर अब ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये फ्लक्स 0 क्यों नहीं होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 1 या 2 स्लाइड के बाद। ये हमारे पास पॉइंट, जैसे करंट हम 0 कर रहे हैं तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होता तो उसकी रीजन क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास अगर फ्लक्स 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या था, लेट्स सपोज की मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है फ्लक्स की, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम देखें इस वेवफॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास फ्लक्स यहाँ पे 0 की, ये फ्लक्स हमारे पास 0 वैल्यू, यहाँ पे फ्लक्स क्या आना चाहिए, 0, लेकिन 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, जब करंट 0 होने से यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है, कुछ क्रिएट हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं रेजिड्यूल फ्लक्स। ये जो फ्लक्स है इसको हम नाम देते हैं रेजिड्यूल, क्योंकि करंट को हमने 0 किया लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उस फ्लक्स को हम नाम देते हैं रेजिड्यूल फ्लक्स। तो आई होप कि रेजिड्यूल फ्लक्स के अंदर कोई इशू नहीं होगा कि हमारे पास जो रिमेनिंग फ्लक्स होता है कोर के अंदर, जब करंट को हम 0 करते हैं, जो रिमेनिंग फ्लक्स कोर में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेजिड्यूल फ्लक्स। तो ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कोर के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो उस जो रिमेनिंग फ्लक्स है या कोर के अंदर जो फ्लक्स 0 नहीं हुआ, ये उसकी रीजन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं भी। ये तो उस फ्लक्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, रेजिड्यूल फ्लक्स। तो ये रेजिड्यूल का मीनिंग आप सब स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि इसको हम बार बार वर्ड को यूज करेंगे आगे। ठीक है, हमारे पास रेजिड्यूल फ्लक्स अगर क्रिएट हो रहा है तो उस रेजिड्यूल फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, या उसको हम मिनिमम कैसे करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे।
तो ये रेजिडुअल फ्लक्स क्या है, इसको ये पॉइंट आप सबको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी वांट टू पुट द फ्लक्स इक्वल टू जीरो, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो, जीरो होना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब करंट जीरो हुआ तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये फ्लक्स को जीरो करें किसी तरह, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है बेसिकली, तो हमें स्टूडेंट बताया कि अगर हम ये फ्लक्स जो क्रिएट हुआ है इसके अंदर, जो जीरो नहीं हुआ इसमें, तो उस फ्लक्स को अगर हम चाहते हैं कि जीरो करें उसको, तो क्या उसको जीरो कैसे कर सकते हैं? तो आप में से कोई स्टूडेंट इसका आंसर करेगा इस क्वेश्चन का कि ये जो फ्लक्स हमारे पास परमानेंट मैग्नेट या रेजिडुअल फ्लक्स क्रिएट हुआ, जब करंट को हमने जीरो किया, ये जीरो एग्जिस्ट नहीं किया है, अगर हम चाहते हैं कि इसको जीरो करें तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? करंट को नेगेटिवली इंक्रीज करें। वेरी गुड, करंट को डायरेक्शन, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट फ्लक्स क्या करें यहाँ पे जनरेट करें, जो इस फ्लक्स को क्या करें कैंसिल आउट करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास, अगर हम देखते हैं सपोज करते हैं ये, सपोज ये फ्लक्स यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है 0.01, अगर हम चाहते हैं इस फ्लक्स को जीरो करें, इट मीन्स हमने ऑपोजिट क्या करें यहाँ पे 0.01 को ऑपोजिट फ्लक्स क्या करें यहाँ पे अप्लाई करें, तो ऑपोजिट फ्लक्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये फ्लक्स ओवरऑल सम क्या आ जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। अगर हमें ऑपोजिट फ्लक्स क्रिएट करना, तो इट मीन्स कि हमें करंट की डायरेक्शन क्या करनी होगी, इसमें रिवर्स करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि ऑपोजिट फ्लक्स क्रिएट हो, ये ऑपोजिट फ्लक्स, अगर हम, क्योंकि फ्लक्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू करंट, when the value of the current will increase, then the value of the flux will increase as well. When the value of the current will increase in the opposite direction, then the flux will increase in the opposite direction as well. अगर हम चाहते हैं कि करंट को अगर हम नेगेटिवली अप्लाई करें या ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करें हम, उस केस में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विल बी जीरो। तो इस केस में हम फ्लक्स को जीरो कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द, तो जैसे जैसे हम नेगेटिवली करंट को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, तो उस केस में ये नेगेटिवली हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, स्टार्ट में जो फ्लक्स इसके अंदर पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जो जीरो नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट में जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स इसको जीरो करने के लिए हमें, जी जी ये थर्ड सेगमेंट के एंड तक सर ये मतलब जीरो होगा या थर्ड सेगमेंट के स्टार्ट में जीरो हो जाएगा? ये थर्ड, जैसे हम थर्ड को स्टार्ट करेंगे फॉरन जीरो, क्योंकि मिनिमम फ्लक्स होगा ये। अगर हम कंप्लीट करें ये, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो रिमेनिंग फ्लक्स होता है ये, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम है। ये स्टार्ट के अंदर जैसे हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिवली, क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके सर। तो ये हमारे पास स्टार्ट के अंदर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये जीरो वैल्यू कैसे की हमने, ऑपोजिट करंट अप्लाई किया। जब ऑपोजिट करंट होगा तो ऑपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, इस फ्लक्स को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल सम क्या आ जाएगा, फ्लक्स का जीरो आ जाएगा। ये जो ऑपोजिट हमने फोर्स अप्लाई की या करंट अप्लाई किया है, या मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई की जो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लक्स क्या हुआ, यहाँ पे जीरो हो गए, उस फोर्स को हम नाम देते हैं कोएर्सिव फोर्स। इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑपोजिट करंट अप्लाई किया या जो ऑपोजिट हमने मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई की, उसको हम नाम देते हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, उसको हम नाम देते हैं कोएर्सिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कि वो फोर्स जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है, इट मीन्स कि वो हमने ऑपोजिट क्या की, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई की या करंट अप्लाई किया हमने, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कोएर्सिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो इट मीन्स कि ये पॉइंट पे आप इसका वर्ड ये भी हम बार बार यूज करेंगे आगे के। कोएर्सिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है बेसिकली हमारे पास, कि वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसकी वजह से हमने क्या किया, फ्लक्स को कैंसिल आउट करके जो परमानेंट फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो रेजिडुअल फ्लक्स एग्जिस्ट किया, उसको हमने क्या किया, जीरो किया है। वो जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है जिस पे हमने जीरो किया, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कोएर्सिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए इसके अंदर। तो अब हम देखें यहाँ पे सेगमेंट नंबर 3 के अंदर, तो यहाँ पे करंट हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, बेसिकली नेगेटिव के अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे करंट हम इंक्रीज करते जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विल इंक्रीज एज वेल। तो अगर हम देखें यहाँ पे करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, तो फ्लक्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा ये। सो इन सेगमेंट नंबर 3, अगर हम यहाँ पे सेगमेंट नंबर 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेगमेंट नंबर 3। तो अगर हम देखते हैं सेगमेंट नंबर 3, करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सेगमेंट में देखें तो करंट हमारे पास क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे सैचुरेशन पॉइंट होगा, उसके बाद फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। So this is the segment number
3, बिहेवियर ऑफ द सेगमेंट नंबर 3। तो आई होप कि ये बिहेवियर आपको क्लियर होगा कि हमारे पास क्योंकि सेगमेंट नंबर 3 के अंदर जो करंट इंक्रीज हो रहा है बेसिकली वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इट मीन्स कि फ्लक्स भी इंक्रीज होगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो नाउ द लास्ट सेगमेंट इज सेगमेंट नंबर 4। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट नंबर 4 का बिहेवियर क्या होगा। सेगमेंट नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं, करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे ये, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे तो दोबारा जब करंट डिक्रीज करेंगे फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सेम वही पॉइंट इसके अंदर अगेन एग्जिस्ट करेगा ये। तो ये फ्लक्स जैसे ही करंट यहाँ पे जीरो होगा हमारे पास सेगमेंट नंबर 4 के अंदर, तो फ्लक्स को भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो दिस इज द सेगमेंट नंबर 4। तो अब यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जैसे सेगमेंट नंबर 4 के अंदर करंट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए, करंट जब जीरो होगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी यहाँ पे जीरो आना चाहिए, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, ये फ्लक्स जीरो नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास अगेन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास रेजिड्यूल फ्लक्स क्या होता है या परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कोर के अंदर क्रिएट हो जाता है ये। अब जब ये क्रिएट होगा इट मीन्स इसको तो हमने जीरो करना है, तो अगेन क्या करेंगे हम ऑपोजिट करंट अप्लाई करेंगे, इट मीन्स अगेन क्या करेंगे, पॉजिटिव हम साइकिल अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव अगेन अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, अगेन इसका फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। उसके बाद फर्दर इंक्रीज सेकंड साइकिल स्टार्ट होगा, तो इस तरह हमारे पास ये करंट का इस तरह ये बिहेवियर क्या होगा, अगेन रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमारे पास 4 सेगमेंट का बिहेवियर कैसे होगा, ये पॉइंट आई होप कि सबको क्लियर होगा। इसके अंदर ये इसके अंदर हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम करंट को जीरो करते हैं इसके अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती। क्या होता है इसके अंदर, कुछ हमारे पास परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कोर के अंदर क्रिएट होता है, उसको हमने क्या नाम दिया है, रेजिड्यूल फ्लक्स। उसको अगर हमने जीरो करना है तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अप्लाई करेंगे। वो जो ऑपोजिट फोर्स होगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, ये कोएर्सिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो अब आइडियल केस में ये कर्व का जो बिहेवियर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए इस केस में, ये अगर हम आइडियल केस में बात करेंगे, जब इसके अंदर हम कहेंगे कोई लॉसेज नहीं हो रहे हमारे पास, उस केस में इसका बिहेवियर इस तरह होना चाहिए कि हमारे पास ओरिजिन से पास होना चाहिए। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ फ्लक्स इन केस ऑफ आइडियल, इन केस ऑफ आइडियल केस। तो ये हमारे पास आइडियल केस में इसका बिहेवियर होना चाहिए। तो आइडियल केस में क्या हो रहा है, जब करंट जीरो हो तो फ्लक्स भी क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा हमारे पास। जब करंट हमारे पास इंक्रीज करेगा फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा ये। जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा ये। तो अगर हम इन दोनों वेवफॉर्म को कंपैरिजन करें यहाँ पे, आइडियल केस में हमारे पास इसका सोल्यूशन की जीरो से पास, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं इस कर्व के अंदर कि यहाँ पे कोर के अंदर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। वो क्रिएट क्यों होता है उसकी रीजन अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि ये आपको एक डिफरेंस क्लियर हो। ये जो हमारे पास अगर हम जो परमानेंट मैग्नेट क्रिएट होता है उसको जीरो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम जीरो करने के लिए, इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, हिस्टैरिसीस। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये जो एक्स्ट्रा मैग्नेटोमोटिव फोर्स करके दोबारा हमने फ्लक्स को जीरो किया, इट मीन्स कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हुई, कुछ लॉस हुई हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे जो फ्लक्स इसके एग्जिस्ट किया उसको जीरो करने के लिए हमने ऑपोजिट करंट अप्लाई किया। वो जो ऑपोजिट करंट अप्लाई करें इट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, बेसिकली लॉस हो रहा है। उसको हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं हिस्टैरिसीस की वैल्यू जीरो तो उस केस में ये करवाने चाहिए। अगर इस कर्व में देखें सेकंड में आप, इस केस में अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स जीरो से पास करे। जब करंट जीरो तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या है, जीरो है हमारे पास। उस केस में हमें ऑपोजिट करंट को अप्लाई करके फ्लक्स को जीरो नहीं करना पड़ता है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर इस कर्व में देखें तो यहाँ पे हिस्टैरिसीस की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या है, जीरो है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि रियल लाइफ के अंदर जो एक्चुअल कोर है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट क्रिएट हो जाता है जो कि जीरो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। उसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपोजिट करंट अप्लाई करते हैं। वो जो ऑपोजिट करंट अप्लाई करें इट मीन्स वो करंट क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। इट मीन्स उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जो लॉस हो रही है उसको हम नाम देते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। आई होप कि हिस्टैरिसीस का मीनिंग क्लियर, हिस्टैरिसीस क्रिएट कैसे हुआ है इसका मीनिंग आई होप कि सब स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है।